All right, today we are solving one sum from partnership, that is a retirement sum, where three partners are being given. First partner is Mohit, Neeraj, and Sohan. Kindly check the question. It is also there on the thumbnail, and in the description also you will find the question. Better take it from the thumbnail, screenshot, and write down the question. It is in SD form, so everything is neat and clean. Otherwise, I'm explaining also things with the sum. So in the question, balance sheet is given and additional informations are given. 5 additional informations are given. Okay. And they have asked you to prepare revaluation account, capital account, and balance sheet. So first one, we will prepare revaluation account and check adjustment number. For revaluation account, you have to remember. Okay, I'll explain in Hindi also for those who do not understand English. आपके जितनी भी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड चीज होगी that will always be given in adjustments या फिर additional information. कभी कभी वो बोल देते हैं the following are the adjustments, following are the additional information. So you have to check that. Number one, they're talking about building to be appreciated. So first one is for building, and it is appreciation. Okay, when they say appreciation, so building is an asset, it is an asset. तो asset के अंदर appreciation होगा. Remember, it will always come on the credit side. अगर asset के अंदर decrement होगा, it will come to the debit side of the revaluation account. So revaluation account, particulars amount rupees, particulars amount rupees. Okay, and this is how format, and this side will be debit, this side will be credit. So number one, they said building to be appreciated, appreciation is happening by 20%. तो 20% से building की value बढ़ रही है. Okay, it is increasing, building की value बढ़ रही है. तो whenever asset की value बढ़ेगी तो क्या होगा, हमें credit side में लेना होगा. अगर घटेगी तो debit side में लेना. So 20% of what? 20% of रुपीज 1 लाख. चेक करो, आपकी जो बैलेंस शीट दी है उसमें 1 लाख रुपीज बताया हुआ है कि बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख रुपीज है. ठीक है, सो दैट गिव्स यू 20,000 रुपीज. सो वी गॉट द फर्स्ट वन एंड विल राइट बाय बिल्डिंग अकाउंट. ओके, साइड में नहीं करके आप यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हो. 20% ऑफ वॉट एवर द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग, जो भी वैल्यू होगी वो लेना. ठीक है, so that is 20,000. So first one we are done. Second adjustment, provision for bad debts. इसके लिए मैं working note कर रहा हूँ so that you all remember and understand. तो क्या बोला है, provision जो है it is increasing to be increased to. The word is very important. Increased to, increased by. यहाँ पे increased to दिया है 15%, means नई प्रोविजन हो गई है 15%. न्यू प्रोविजन हैज बिकम 15%. अगर बोला होता बाय, मतलब पुरानी प्रोविजन के अंदर और थोड़ी सी ऐड करनी है. ठीक है, तो फिर वो 15% नहीं होते, मतलब पुराना वाला भी है प्लस ये जो आपने बोला है. ये समझ आ गया? ओके, इंक्रीज बाय, तो यहाँ पे इंक्रीज टू 15%, मतलब नई प्रोविजन की वैल्यू है. दिस इज द value of new provision. How do we do it? Number 2, they said provision for bad debts. Bad debts, इसका कैलकुलेशन कैसा है चेक कर लो. हम लोग लेंगे डेटर का वैल्यू. सो चेक द बैलेंस शीट. डेटर्स वैल्यू इज गिवन 19,000. ये टोटल वाला लेना है, नॉट द इनसाइड वैल्यू, टोटल वाला लेना है. ठीक है, समझ आया? जो पुरानी, जो ओल्ड प्रोविजन है, जो पुरानी प्रोविजन है उसको ऐड कर दो. एंड चेक प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन इन द बैलेंस शीट गिवन 1,000 रुपीज. चेक कर लो, आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें 1,000 ओल्ड प्रोविजन है. ठीक है, अब जो नई प्रोविजन है उसको माइनस करो, न्यू प्रोविजन. ओके, एंड न्यू प्रोविजन गिवन हाउ मच? 15% ऑफ डेटर्स वैल्यू. यहां पे जो 15% जो डेटर्स वैल्यू आप लोगे, दैट विल नॉट बी 19,000. ओके, वो आपको देखना है बैलेंस शीट में असल में डेटर्स की वैल्यू कितनी थी. ये तो टोटल एडजस्टेड वैल्यू थी
ओल्ड प्रोविजन मिला के। यहाँ पे जब आपको कैलकुलेट करना है 15% ऑफ डेटर्स, तो आपको ओरिजिनल वैल्यू लेना है। कौन सा लेना है? ओरिजिनल वैल्यू। यहाँ पे आपको ओरिजिनल वैल्यू लेना है, ओरिजिनल वैल्यू। तो चेक करो ओरिजिनल वैल्यू कितनी दी थी, इट इज 20,000। सो 15% ऑफ 20,000 गिव्स यू 3,000। यहाँ तक क्लियर है? ये ठीक है, माइनस कर दो इसको। सो दैट गिव्स यू 17,000। अब ये याद रखना है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो जाएगा हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि बढ़ रहा है, प्रोविजन बढ़ रहा है। पहले की प्रोविजन थी 1,000, नई प्रोविजन है 2,000। प्रोविजन अब क्या होता है, ये कुछ लोग हैं जो हमें पैसे देने वाले थे, अब वो हमें फेस नहीं दिखा रहे। तो पहले हम सोच रहे थे बस एक ही बंदा है जो हमें पैसे नहीं देने वाला, वो है 1,000 वाला। अब हम बोल रहे हैं कि कुछ एक और बंदा है या और एक नई पार्टी है जो रिप्लाई नहीं कर रही, हमारा मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही, ईमेल का रिप्लाई नहीं कर रही, एंड उनसे हमें 3,000 मिलना है। ठीक है, ये जो पहले वाला 1,000 है वो तो चलो हो गया सो हो गया। ठीक है, अब और एडिशन हो रहा है, मतलब इसको मिला के 1,000 को मिला के अब टोटल ऑल टुगेदर हमारा जो लॉस हो रहा है वो 3,000 हो रहा है। मतलब इसी के अंदर 1,000 भी है। ये समझ आ गया? ओके, तो टोटल हमारा जो लॉस हो रहा है ओरिजिनल डेटर्स के ऊपर 20,000 के ऊपर माइनस 3,000 वो होगा 17,000। अब मैंने ऐसे ही क्यों लिखा, ताकि आपको याद रहे। अब डेटर्स का नेट वैल्यू लेना है, ओल्ड वैल्यू ऐड करना है, न्यू प्रोविजन माइनस करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, वो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इनका डिफरेंस जाना है। ठीक है, और ये जो नई वैल्यू है ये जाएगी हमारी न्यू बैलेंस शीट में। इसीलिए मैंने ऐसे किया, ये सबसे शॉर्टकट मेथड है, इससे जल्दी हो जाता है। ठीक है, वरना हमें पूरा समझाना पड़ेगा। तो हमेशा ऐसे ले लेना, इनका डिफरेंस ले लेना रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, और ये लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो एसेट घट रहा है, इस तरफ आएगा डेबिट साइड में। टू बैड डेट्स, ओके, वी विल राइट टू बैड डेट्स, bad and doubtful debts, bad and doubtful debts। ओके, समझ आया? उन दोनों का डिफरेंस है, तो डिफरेंस होगा 3,000 और 1,000 के बीच का डिफरेंस, दैट इज 2,000 रुपीज। ओके, सो वी आर डन विद नंबर 2। नंबर 3 इज मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। ये बहुत इजी है, मशीन की वैल्यू घट रही है। नंबर 3 इज अबाउट मशीन, ओके, और मशीन की वैल्यू घट रही है। मशीन इज एन एसेट। ठीक है, समझ आया? बाय दिस इज गिवन 20%। तो बहुत इजी है, ये सिंपली कर लेंगे। टू मशीन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट 20% ना, 20% ऑफ मशीन वैल्यू। तो चेक करो बैलेंस शीट में मशीन की वैल्यू दी है 50,000, ये हो गया 10,000। यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो विद दिस वी आर डन विद रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद में गुडविल का दिया है, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगा। उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का हो गया खत्म, और कुछ नहीं आ रहा। तो इस तरफ टोटल करेंगे हम लोग, क्या आ गया 20,000। अब बोलोगे इस तरफ ही क्यों? क्योंकि यहाँ 12,000 है, यहाँ पे 20,000 है। दिस इज बिगर, सो बिगर वैल्यू विल ऑलवेज बी टेकन फर्स्ट। ओके, समझ आया? दिस साइड इज बिगर, सो विल टेक दैट, वी विल क्लोज हियर। ऑलवेज लीव स्पेस, यहाँ पे हमेशा स्पेस छोड़ो, बिकॉज वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट ईदर लॉस और प्रॉफिट। यहाँ बैलेंस आएगा, बैलेंसिंग फिगर आया तो प्रॉफिट, यहाँ बैलेंसिंग फिगर आया तो लॉस। ओके, सो दिस साइड इज बिगर 20,000, ब्रिंग इट हियर 20,000। समझ आया? दिस माइनस दिस माइनस दिस, आ गया हमारा 8,000 रुपीज। यहाँ तक क्लियर है? टू प्रॉफिट, क्या हो गया हमारा? प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ओके, एंड दिस हैज टू बी ट्रांसफर्ड। आपको क्या करना है? ट्रांसफर्ड करना है। किसको ट्रांसफर करना है? तीनों पार्टनर्स को, तीनों। ओके, दो देयर इज अ पार्टनर हु इज रिटायरिंग, बट हमें तीनों को ट्रांसफर करना है, एम, एन एंड एस। याद रखना एन रिटायर हो रहा है, बट स्टिल वी हैव टू गिव हिम ऑल्सो।
इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया था। दोज पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड, सर यहाँ पे रेशियो नहीं दिया, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, किससे होगा? तो इनका कैपिटल रेशियो दिया हुआ था, चेक करो उनका कैपिटल रेशियो दिया है। तो एम, एन और एस का कैपिटल दिया है, इसका दिया था 80,000, इसका था 40,000, इसका भी 40,000 था। ठीक है, यहाँ से हमें रेशियो ढूंढना है, तो इस टू कैंसिल कर देंगे, के कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया। ओके, और तीनों 4 से जा रहे, 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8। दिस इज योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये समझ आ गया? तो इस बेसिस पे एम का हो जाएगा 2 आउट ऑफ 2 + 1 + 1 4। एन का हो जाएगा 1 आउट ऑफ 2 + 1 + 1 4। समझ आ गया? 1/4। ये समझ आया? मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट यू हैव 8,000 रुपीज, 8,000 रुपीज, 8,000 रुपीज। या तो क्लियर है? सो दैट वे दिस विल बी हाफ ऑफ इट, 4,000 इसको मिलेगा। ठीक है, इसको मिल जाएगा 2,000, इसको मिल जाएगा 2,000। क्लियर है? वी आर डन विद रिवैल्यूएशन अकाउंट। Okay, for partners capital account, that is the second thing which they have asked. शुरुआत करेंगे बैलेंस से, so we'll write by balance brought down। तो कैपिटल का जो बैलेंस है उससे हमेशा शुरुआत करनी है, और M का कैपिटल दिया हुआ है 80,000, N का दिया था 40,000, S का था 40,000। ठीक है, चेक करना क्वेश्चन में सबसे पहले क्या रिजर्व फंड दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, ठीक है, या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट दिया। अगर दिया है तो यू हैव टू ट्रांसफर, एंड वी नो वी हैव इट। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? जनरल रिजर्व। क्या दिया है? बाय जनरल रिजर्व। यू राइट फुल स्पेलिंग, ओके, पूरी स्पेलिंग लिखना। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो जनरल रिजर्व का दिया था 20,000, 20,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1:1 में। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये कितना हो गया? यहाँ पे कितना होगा? 10,000, 5,000, 5,000। ठीक है, ओके, सो वी आर डन विद बैलेंस शीट के। बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स थे हो गया, ओके, डन। उसके बाद चेक करो पॉइंट नंबर 4, पॉइंट 1 2 3 रिवैल्यूएशन अकाउंट में गया, खत्म। पॉइंट नंबर 4 गुडविल से रिलेटेड है, एंड गुडविल इज बीइंग गिवन टू यू। गुडविल दिया है 72,000 रुपीज। या तक ठीक है? ओके, सो 72,000 में से चेक करना है कौन रिटायर हो रहा है। इनमें से रिटायर होने वाला है मिस्टर एन, दिस द रिटायरिंग पार्टनर। मैंने यहाँ पे आर से लिख दिया सो दैट यू रिमेंबर, एन इज द रिटायरिंग पार्टनर। और उसका शेयर कितना है? एन इज द पर्सन हु इज रिटायरिंग। एन शेयर कितना हो गया? 1 आउट ऑफ 4, 1 आउट ऑफ 4 ऑफ 72,000। ये गुडविल जो दिया था ये पूरे फर्म का था, पूरे फर्म की वैल्यू है। ठीक है, पूरे बिजनेस का गुडविल है वो, सिर्फ एन का नहीं है। तो यू हैव टू फाइंड आउट। सो दिस विल बी 18,000 रुपीज। तो हमें पता लग गया ये 18,000 रुपीज है। और ये जो है एन को मिलेगा, क्या है? एन को मिलेगा। कहां से मिलना है? ये कौन देगा ये पैसे? ये पैसे आना है, एरो याद रखना। ठीक है, ये पैसे कहां से आएंगे? रिमेनिंग पार्टनर्स, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं। एम और एस को बिजनेस कंटिन्यू करना है तो उनको गुडविल दे के उसकी पेमेंट करके जो रिटायरिंग पार्टनर्स है फिर उसको भेजना होता है। ठीक है, और ये हमेशा होगा गेनिंग रेशियो में। किसमें होगा? गेनिंग रेशियो। किसका गेनिंग रेशियो? एम और एस का गेनिंग रेशियो। हाउ डू वी कैलकुलेट? तो पहले क्या था चेक कर लो। पहले था एम एन एस। ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था हमारे पास 2:1:1। एन रिटायर हो गया, ओके, सो व्हेन एन इज लीविंग, एन इज रिटायरिंग, ठीक है, इन दैट केस कंटिन्यूइंग पार्टनर हो जाएंगे हमारे। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स विल बी एम एंड एस। ठीक है, और इनका रेशियो क्या होगा? 2:1, 2:1। इज इट ओके? और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर आप कैलकुलेट करोगे इसका गेनिंग रेशियो, ठीक है, सो दैट विल बी अगेन 2:1। जिनको नहीं समझ आ रहा प्लीज
write in the comment box how to calculate gaining ratio. I will make one video for you and I'll share again. Okay, so gaining ratio होने वाला है 2:1. Okay, so 2:1 के हिसाब से 18,000 को डिवाइड करना है. ठीक है, how do we do it? So 2:1 है, so it will be 2 out of 3 of 18,000. ठीक है, और S कितना कंट्रीब्यूट करेगा? S कंट्रीब्यूट करेगा 18,000 का 1 out of 3. ये समझ आया? सो व्हाट इज द अमाउंट? कितना आ रहा है? हमेशा कैलकुलेटर साथ में रखो. ओके, इफ यू आर वाचिंग द वीडियो एंड यू आर कैलकुलेटिंग, कैलकुलेटर पास में रखो एंड यू कैलकुलेट. हाउ मच आर वी गेटिंग? ये हो गया 12,000 एंड दिस विल बी 6,000. गुडविल का पता लग गया. सो मिस्टर एन को मिलेगा 12,000 और 6,000. किससे मिलेगा इनको? M और S से. विल राइट बाय M's कैपिटल अकाउंट. ये समझ आ गया? और 6,000 मिलेगा S से, S's कैपिटल अकाउंट. यहाँ तक क्लियर है? ओके, यहाँ पे वर्टिकली, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली. तो यहाँ पे एडजस्ट करना है. यहाँ पे पेमेंट हो गई है, यहाँ पे एडजस्ट करना है. M के अकाउंट में से 12,000 निकालना है क्योंकि N को चला गया. सेम S के अकाउंट में से भी 6,000 माइनस करना है. ठीक है, समझ आया? और यहाँ पे हो जाएगा 2N's कैपिटल अकाउंट. दिस इज फॉर गुडविल. अगर इनकेस नहीं समझ आ रहा है ऐसे लिख लेना, ये गुडविल के लिए. ये समझ आएगा? तो गुडविल नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 इज डन. दिस इज द वर्किंग नोट, यू कैन अंडरस्टैंड. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 5, वी हैव टू एडजस्ट द कैपिटल अकाउंट्स. बिफोर वी डू दैट, चेक करो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है और उसमें से हमें प्रॉफिट मिली थी. ठीक है, सो वी हैव टू ट्रांसफर दैट प्रॉफिट बाय, ये हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट. एम को कितने प्रॉफिट मिली थी? 4,000, 2,000 एंड 2,000. यहां तक क्लियर है? ओके, चेक करो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये प्रॉफिट था. ठीक है, और तो कुछ दिया नहीं था हमारा. ठीक है, सो वी आर डन विद whatever is been given. Now point number 5. Before we do that, I need to rub this. Pause करना. Start कर दो. Okay. So point number 5, we have adjustments. आप चेक करो. Adjustment number 5. उन्होंने बोला है is given in the equation. The capital of the new firm is fixed to rupees 1,20,000. So new capital of the firm. New capital of the firm is given 1,20,000. Okay, इस हिसाब से we need to know who are the partners M and S. ठीक है, और उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. What is the new profit sharing ratio? In the previous one where I was calculating this goodwill part, I have already done new profit sharing ratio. उनका 2:1. ठीक है, सम स्टूडेंट्स माइट गेट कंफ्यूज के सर गेनिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों 2:1 है. यस, दैट्स करेक्ट, वही आ रहा है. ठीक है, समझ आ गया? ओके, सो दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इस हिसाब से M का हो गया, M's न्यू कैपिटल अमाउंट विल बी 2 out of 3 of the total of the capital of the firm. ये ठीक है, सो दिस विल बी 80,000. सेम वे N's न्यू कैपिटल कितना होगा? N's न्यू कैपिटल क्या होगा? 1 out of 3. 1 out of 3 of the total capital of the firm 1,20,000. ये समझ आ गया? इसको कैंसिल किया, हो गया 40,000. इनकेस नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दो. आई विल एक्सप्लेन अगेन जहां कहीं पे भी रिक्वायरमेंट है. आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो. सो वी आर डन विद पॉइंट नंबर 5. दैट मीन्स हमारा जो न्यू कैपिटल आने वाला है, जो बैलेंसेस आने वाले हैं, मीन्स द बैलेंसिंग फिगर इज बीन ऑलरेडी गिवन टू यू इनडायरेक्टली. तो ये हो गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वी गॉट बैलेंस कैरी डाउन ऑल्सो. दिस इज द बैलेंस. एन तो रहा नहीं. ओके, रहा नहीं मीन्स ही हैज रिटायर्ड. ओके, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ढूंढ लेंगे अमाउंट. ओके, वी विल नॉट राइट हियर. समझ आया? जो भी रिटायर होता है उसके लिए यहाँ नहीं लिखते हैं. ओके, नाउ वी गॉट द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स
80,000, for Mr. M and for S 40,000. यहाँ तक clear है? And for Mr. N it will be loan account. It will be loan account. So we'll write Mr. N's loan account. ठीक है, वो आएगा यहाँ पे, ये हो गया डैश डैश, यहाँ पे आएगा. So we need to find out that. वो कैसे मिलेगा? वो मिलेगा बैलेंसिंग फिगर. हाउ डू वी गेट इट? थ्रू बैलेंसिंग फिगर. तो किसके लिए बैलेंस करना है? एन कॉलम के लिए. किसके लिए? एन कॉलम के लिए. तो एन के कॉलम का पहले टोटल कर लेते हैं. ओके, सो 40,000 प्लस 5,000, 45,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 2,000, that gives you 65,000. And we got it 65,000. Okay, यहाँ पे बड़ा है. Okay, bring this amount here. Okay, माइनस अगर यहाँ पे कुछ भी होता तो माइनस करना है, but we don't have anything, so no need to minus anything. So 65,000 minus 0 will be 65,000. So we got 65,000. Okay, this is the most important element for your sum. यहाँ तक ठीक है? Clear है? Okay, now let's do it for M and S. We are done for N. Now for M, total value is coming how much? 94,000. ये हो गया 94,000. Bring it here. 94,000 minus this. So 2,000 rupees. How much is it? 2,000 rupees. Same way for S. S का कितना हो गया? 47,000 rupees. Okay, bring it here. 47,000 rupees minus 40,000, 6,000, बच गया 1,000 rupees. Okay, so what do we do with this amount now? This will be paid to N and S. दोनों को पे कर देंगे. So this will be bank account और cash account. Is it okay? अगर क्वेश्चन में कैश दिया तो कैश ले लो, अगर बैंक दिया तो बैंक ले लो. So we'll write bank account. ये समझ आ गया? Okay, and how do we get this value? ये कैसे आया? ये आया बैलेंसिंग फिगर से. आप बोलोगे सर यहाँ पे भी बैलेंसिंग? हाँ, ये जो है ये N के लिए है, ये जो है बैलेंसिंग फिगर जो है वो है M and S के लिए, और ये जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो ले जाएंगे वापस अपने साथ. ओके, वो अपने साथ लेके चले जाएंगे. Is it okay? So with this we are done with partners capital account also. In case you have any questions, write in the comment box. I will explain again. Now let's see the balance sheet. For preparing new balance sheet, आपको पुरानी बैलेंस शीट देखनी है and then go with the same sequence. So we will follow the old balance sheet. Old balance sheet already been given to us has creditors 21,000. तो creditors लिखेंगे but बैलेंस नहीं लिखना, अमाउंट नहीं लिखना. पहले चेक करना रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ हुआ कि नहीं हुआ. तो चेक क्रेडिटर्स से रिलेटेड कुछ रिवैल्यूएशन अकाउंट में हुआ था, नहीं हुआ था. दैट्स व्हाई we'll write as it is 21,000. ठीक है. नेक्स्ट दिया है मोहित्स कैपिटल अकाउंट. सो I'll write M's कैपिटल अकाउंट. यू कैन राइट फुल स्पेलिंग. ओके, M's कैपिटल अकाउंट. ये पुरानी बैलेंस शीट वाला नहीं लिखना है, नया जो कैपिटल मिला वो लिखना है. तो नया कैपिटल जो है वो है 80,000. यू कैन चेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये कहां से मिला मेरे को? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, जो बैलेंस कैरिड डाउन था वो लेना है. सेम वे एसएस कैपिटल अकाउंट. ठीक है, ये हो गया 40,000. ये भी मिल गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब जो एन था वो रिटायर हो रहा है तो उसका लोन अकाउंट बन जाएगा. क्या बन जाएगा? लोन अकाउंट. एंड नथिंग इज बीन गिवन इन द क्वेश्चन. कुछ नहीं बताया क्वेश्चन में कि एन के साथ क्या हुआ, उसको कितनी पेमेंट की गई, कैश दिया गया नहीं दिया गया. सो यू हैव टू एज्यूम कुछ नहीं हुआ तो लोन अकाउंट उसका जो है वही लिख दो 65,000 रुपीज. यूजुअली कुछ ना कुछ पेमेंट होता है बट क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं तो डोंट डू एनीथिंग. assumptions डालने की जरूरत नहीं है. ठीक है, बट इन द बुक आई हैव सीन मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स दे assume एंड देन दे मेक फर्दर ट्रांजैक्शंस आल्सो. उसके लिए दूसरा कोई और सम देख लेंगे. बट एग्जाम में अगर नहीं दिया है तो डोंट assume. अपना काम खुद से मत बढ़ाओ. ठीक है, वही करो जितना क्वेश्चन में दिया है. इज इट ओके? दिस इज लोन अकाउंट एंड चेक. पुरानी बैलेंस शीट में और कोई आइटम दिया नहीं था. जनरल रिजर्व. आप बोलोगे सर जनरल रिजर्व वो तो ट्रांसफर हो गया ना तीनों को. That is been already transferred, so we don't have to do anything with the general reserve. Check partners capital account, हमने ट्रांसफर कर दिया, so it's done, gone. We don't have any more items under
liabilities. Asset side, first one is building. Okay, check 1 lakh no. और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हुआ था, इंक्रीमेंट हुआ था by 20,000, so this became 1,20,000. I hope this is clear. Okay, next one है मशीनरी रिड्यूस हुआ था, इसकी वैल्यू रिड्यूस हुई थी, ओके, बाय 10,000 ना. ओके, सो 50,000 माइनस 10,000, दिस हैज बीन रिड्यूस, सो नई वैल्यू हो गई 40,000. नेक्स्ट स्टॉक. नाउ फॉर स्टॉक देयर वाज नथिंग, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सो राइट द वैल्यू एज इट इज 18,000. ओके, नो चेंजेस, so write same value 18,000. next one is debtors. now debtors मैंने working note दिया था ना, याद है ना, working note दिया था, so last value is 17,000. okay, and write here working note for yourself. कहाँ से आया 17,000? working note. ये समझ आ गया, shortcut. next cash at bank. now this at cash at bank, जो दिया है वही लिखो. ओके, पहले क्या वैल्यू थी, फर्स्ट वैल्यू इज 14,000. अब चेक करो कहीं पे बैंक अकाउंट लिखा हमने, कैश अकाउंट लिखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चेक करो, हमने लिखा है, ठीक है. बैंक अकाउंट लिखा था ना एम और एस के लिए 2,000 एंड 1,000, मीन्स 2,000 हमने पे किया एम को और 1,000 हमने पे किया एस को, क्योंकि वो एक्स्ट्रा था, ठीक है, उनका कैपिटल एडजस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा अमाउंट था, तो ये पेमेंट कर दी हमने. सो बेसिकली वी आर लेफ्ट विद 11,000 रुपीज. ओके, एंड विद दिस वी गॉट द सम. और आई नो दिस इज टैली फिगर, दिस इज योर होमवर्क, आपको ये दोनों टोटल करना है, यू हैव टू फाइंड आउट दी टैली फिगर. अगर दोनों टैली मिल रहे हैं अमाउंट, दैट मीन्स एवरीथिंग इज करेक्ट एंड आई नो एवरीथिंग इज करेक्ट, तब भी you have to do it. Okay, this is your work and tell me what is the tally amount here, write in the comment box. सबको ये tally figure मिला या नहीं मिला, so we will all know सबको same tally figure मिल रहा है या नहीं. Okay, thank you so much.